All right, so hello all. Now we have already completed the crucial topics in operating system. Like we have already covered what are the basic terms involved in operating system, what is actually an operating system. Then we had one video, one lecture regarding the scheduling also. So there in the scheduling, what we did covered, we have covered all the types of scheduling. We have also solved the numericals regarding the scheduling algorithms, and uh, related questions were asked by you. Like I have given the questions to you, like you people can practice, the exercises were given, but and you people, I think you people have been solving the same also. But in today's lectures, this is all together, like the lecture is related, everything is correlated. If you have not gone through the previous lectures, you have to go through it once, right? So the next topic for today, like the topic for the day, is process synchronization in operating system. Now this is very important topic. Everything is important, as you people are aware that these topics are very crucial, and they are very crucial from your examination point of view. You are definitely going to get one or two questions from this particular topic. अब मैं क्या करूंगी class, in today's lecture only I would try to complete the entire process synchronization in the single lecture. So be attentive, do keep asking the questions, do solve the previous year questions, and you can keep asking your questions, or if the concept is not clear, you can ask it. What we are doing, firstly we are making the concepts clear, then we will be doing the questions. We will be solving the problems. Repeatedly I have told you many times, अगर आपने सीधे ही डायरेक्टली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर्स. आप पेपर को सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है. फॉर एनी एग्जाम यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एंड ओनली देन you can answer the question, right? So let us just get started with the today's topic. So our today's topic is class, as you can see, process synchronization in operating system. So what is process synchronization? अब हमने जितना भी पुराना बातें कर लिया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो सब टर्म्स जो अगर यहाँ पर यूज हो रहे हैं तो वो आप अवेयर होंगे, यू पीपल आर अवेयर ऑफ द टर्म्स, राइट? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है क्लास, आपको इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आ रहा है. Now you know what is a process. CPU is performing each and every task by considering every task as a process, and accordingly the process and threads are working, and therefore we have this process word, right? अब मैं उसी के continuation में आपको बता रही हूँ. अब process क्या है? Now this is not our story. Now the story is what is process synchronization. See, when two or more processes cooperates with each other, जब एक या एक से ज्यादा process एक दूसरे के साथ, let's say if we have a process P1 and if we have a process P2, वो एक दूसरे के साथ cooperate कर रहे हैं. कॉपरेट का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन मस्ट बी प्रिजर्व्ड. उनकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन कि भाई पहले तू एग्जीक्यूट हो जा या पहले तू एग्जीक्यूट हो जा, बात तो यही है. देन ओनली यू कैन से दैट दे आर कोऑपरेटिंग. अदरवाइज देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर एग्जीक्यूशन एंड इनअप्रोप्रिएट आउटपुट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड, right? So what is a cooperative process? A cooperative process is the one which can affect the execution of the other process, and it can be affected by the execution of the other process. वो किसी दूसरे को इफेक्ट कर भी सकता है और इफेक्ट हो भी सकता है. Now such processes needs to be synchronized. इस तरह के processes को हमें क्या करना पड़ता है? Synchronize करना पड़ता है. क्यों? So that the order of their execution can be guaranteed. उनका order हम guarantee करके बोल सके कि let's say at time is equals to 2 microseconds, process P1 will execute. Then at time 2.1 microseconds, let's say P2 will execute. We will assuredly say, हम एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि इस टाइम स्टैम्प में ये वाला प्रोसेस रन करेगा, इस टाइम स्टैम्प में ये वाला प्रोसेस रन करेगा, राइट? तो वो तभी होगा when we will cooperate this concept known as process synchronization. So, the procedure involved in preserving the appropriate order of execution of cooperative process is known as process synchronization. Now, there are various synchronization mechanisms which are used to synchronize the process, and all these mechanisms are in your syllabus. As you people are aware कि हमारे syllabus में तो ये पूरा का पूरा है ही, so we would have to cover these things, right? So,
The next thing that you people should be knowing is what is a race condition. Race condition क्या होता है? See, race condition typically occurs, race condition तब होता है when two or more threads try to read, write or possibly make the decisions based on the memory they are accessing concurrently. race condition class तब होता है जब एक से ज्यादा थ्रेड एक वक्त में रीड, राइट और भी कोई डिसीजंस लेना चाह रहा है तो आपकी आ जाती है रेस कंडीशंस. ठीक है. देन now this is a concept, we will be involving this concept in process synchronization. Then there is a critical section. What is critical section? Now the regions of a program that try to access the shared resources, वो region जहाँ पर shared resources program access करना चाह रहे हैं और जो future में क्या cause कर सकते हैं, race condition cause कर सकते हैं, that is known as critical section. तो critical section क्या है? critical section वो है which can raise, critical section is a section that can raise रेस कंडीशन. नाउ व्हाट इज अ रेस कंडीशन? रेस कंडीशन का मतलब है एक वक्त पर एक टाइम में एक से ज्यादा कोई प्रोसेस या कोई थ्रेड काम करना चाह रहा है एंड द सेम टास्क, देन रेस कंडीशन arises. So to avoid the race condition among the processes, we need to assure that only one process at a time can execute within a critical section. इसीलिए we have to make sure कि जो मैंने आपको critical section बताया है, इस critical section में एक वक्त पे सिर्फ एक ही process involve होगा. ठीक है. So critical section is the part of the program which tries to access the shared resources. Critical section cannot be executed by more than one process at the same time. Operating system faces the difficulties in allowing or disallowing the processes from entering the critical section. अब हमें जो problems आएंगी, जो डिफिकल्टीज आएंगी, किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में इन्वॉल्व करना है, किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. Right? So the critical section problem is used to design a set of protocols that can ensure that race conditions जो हैं among the processes will never arise. So in order to synchronize the cooperative processes, our main task is to solve the critical section problem. तो हमारा main काम क्या है? हमें critical section problem को solve करना है, इसका solution ढूंढना है. और ये हमें इस तरीके से ढूंढना है कि इसमें कुछ कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है. एक्चुअली देयर आर 4 कंडीशंस. वो चारों कंडीशंस सैटिस्फाई हों तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. अब वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. नाउ द प्राइमरी requirement is mutual exclusion. Mutual exclusion क्या होता है? Now our solution must provide mutual exclusion. Now what is mutual exclusion? That is, if one process is executing inside the critical section, अगर critical section में आप देख भी रहे पिक्चर में, अगर एक प्रोसेस है then other process must not enter in the critical section. तो कोई दूसरा प्रोसेस critical section में enter ना करे. As you can see in the picture, here we were having process P2, P3, P4 and P1, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ P1 enter किया है, P2, P3, P4 enter नहीं करे हैं. ठीक है. So this you have to keep in mind. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This scenario is known as mutual exclusion. इसको हम लोग बोलते हैं क्लास म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का जो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए. राइट. देन द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज प्रोग्रेस. अब प्रोग्रेस का क्या मतलब है? Progress means that if one process doesn't need to execute into the critical section, अगर एक process को critical section की execution नहीं करनी है, then it should not stop the other process to get into the critical section. तब इसको दूसरे process को stop भी नहीं करना चाहिए. अगर एक process खुद enter नहीं हो रहा है critical section में, then it should not disturb the other process also. ठीक है, ये तो primary है conditions, this must be satisfied. सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में है बाउंडेड वेटिंग. बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है? वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. अब मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन में P1 एंटर कर जाता है और P2 भी एंटर करना चाहता है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है. उसको बोलते हैं कुछ बाउंड. कुछ तो बाउंड होगा, कितनी देर वेट करेगा, वो वेटिंग टाइम हमें प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए पहले ही, जो कि आपकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है. तो वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट. क्यों हमें प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए? ताकि
मान लीजिए अगर P2 वेट कर रहा है, सो इट शुड नॉट एंडलेस वेट फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, वो एंडलेसली वेट ही ना करता रह जाए, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन मिले। एंड अनदर इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, इसका मतलब ये है दैट working that our mechanism must be architectural natural. It means that if our solution is working fine on one architecture, अगर एक हार्डवेयर पर सपोर्ट करते हुए, एक सॉफ्टवेयर पर सपोर्ट करते हुए अगर आपका मैकेनिज्म काम कर रहा है, देन इट शुड ऑल्सो रन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, तब वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी रन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स आप ध्यान में रखते हुए ही क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का या फिर रेस कंडीशन अराइज ना हो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ टिल नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, रेस कंडीशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन क्या करता है। क्रिटिकल सेक्शन अलाउ करता है कि एक वक्त पे एक ही प्रोसेस आए और बाकी प्रोसेस जो है उनको भी क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, इन दिस वे दैट रेस कंडीशन शुड नेवर अराइज। ठीक है, अब इसको अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को सैटिस्फाई करना है। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अनदर इज प्रोग्रेस, नेक्स्ट इज बाउंडेड वेटिंग एंड द लास्ट वन इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। अब जो सॉल्यूशन है, लेट्स जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म। अब ये क्या है? Now this is a simplest synchronization mechanism, ये सबसे simple mechanism है। This is a software mechanism implemented in user mode, ये user mode में implement होता है। This is a busy waiting solution which can be used for more than 2 processes, ये एक ऐसा solution है जो 2 या 2 से ज़्यादा processes के लिए आप use कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इस mechanism में होता क्या है। In this mechanism, a lock variable locks used, ठीक है, यहाँ पर एक लॉक वेरिएबल लॉक्स हम यूज करते हैं। टू वैल्यूज ऑफ द लॉक्स कैन बी पॉसिबल, लॉक की 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। लॉक 0 का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन अभी क्या है, वेकेंट है, और लॉक 1 का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, ऑक्यूपाइड है। यानी अगर वेकेंट होगा, अगर लॉक का वैल्यू, इफ माई द वैल्यू ऑफ लॉक इज 0, जो भी प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर मेरा लॉक 1 है तो मेरे को एक जो भी प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू वेट, उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट। Then a process which wants to get into the critical section first checks the value of the lock variable. If it is 0, अगर वो 0 होता है, then it sets the value of the lock as 1, वो enter करेगा और साथ साथ लॉक का वैल्यू क्या कर देगा, क्लास 1 कर देगा। And it enters into the critical section, otherwise वो क्या कर रहा है, अदरवाइज वो वेट कर रहा है, अदरवाइज तो लॉक का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, राइट। तो इस मैकेनिज्म का जरा आप सूडो कोड देखिए, एंट्री सेक्शन, जब तक while लॉक इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक मेरा लॉक 0 के इक्वल नहीं है तब तक वो एंट्री सेक्शन में यहाँ पर कंडीशन चेक करता रहेगा। अदरवाइज जहां पर वो देखता है कि लॉक इज इक्वल टू 1, जब अगर मेरा लॉक 1 है तो वो सिंपली क्या करेगा, वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, नो पहले वो एंट्री सेक्शन में जा रहा है, वो चेक कर रहा है क्या मेरा लॉक 0 के इक्वल नहीं है। अगर मेरा लॉक 0 के इक्वल होता है तो वो क्या कर सकता है, लॉक को 1 करेगा, सेट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, अपना काम परफॉर्म करेगा और एग्जिट कर देगा, राइट। यही काम होना चाहिए। लेकिन अगर वो लॉक चेक करता है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो ये इसी वाइल लूप के अंदर घूमता रहेगा ना। तो घूमता रहेगा मतलब इट कीप्स वेटिंग, इट कीप्स वेटिंग, वो वेट करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो लॉक का काम यहाँ पर, जैसे ही वो 1 होता है, वो क्रिटिकल सेक्शन में काम करा, एग्जिट होते हुए भी आपको क्लास ध्यान में रखना है, जब एग्जिट करेगा, एंटर कर रहा है तो उसने लॉक की वैल्यू 1 करी, जब एग्जिट करेगा तब भी लॉक की वैल्यू जाते जाते वो 0 कर देता है, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। सो एवरी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज जज्ड बेस्ड ऑन द 4 कंडीशंस जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी हर सिस्टम पे रन कर जाए। नाउ आउट ऑफ द 4 पैरामीटर्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस जो है, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय एनी सॉल्यूशन। आप कोई भी सॉल्यूशन करिए, ये तो जरूर प्रोवाइडेड होना ही चाहिए। अब देखते हैं क्या हमारा ये जो मैकेनिज्म था, लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म, क्या ये इनमें से कितने पैरामीटर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो लेट्स जस्ट चेक। The lock variable mechanism doesn't provide mutual exclusion, ये mutual exclusion ही नहीं provide कर रहा है in some of the cases। आप असेंबली लैंग्वेज में यही सेम कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, वी आर लोडिंग द लॉक, लेट्स से R0 रजिस्टर में हमने लॉक के वैल्यू को स्टोर कर लिया। देन वी आर कंपेयरिंग
द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर हम कंपेयर कर रहे हैं विथ जीरो, हम जीरो से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी हम यही चेक कर रहे थे क्लास, वाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी आर कंपेयरिंग विथ जीरो। हम जीरो से कंपेयर करेंगे और जीरो से कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जंप टू स्टेप नंबर 1। अगर आर रजिस्टर आर नॉट का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है तो आप वापस जंप करेंगे किस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, यानी अगेन यू नीड टू स्टोर द वैल्यू, अगेन यू नीड टू चेक, स्टोर चेक स्टोर चेक, यही हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ये सिचुएशन ट्रू हो गई, लाइक द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो गया तो आपने उस समय क्या करना है, देन यू हैव टू स्टोर 1, उसके बाद आपने स्टोर कर लेना है 1, सो यू हैव टू सेट द न्यू वैल्यू ऑफ द लॉक एज 1, और आप कहाँ एंटर कर जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन में आपने काम कर लिया, आपने अपना सारा कुछ कर लिया, द मोमेंट यू आर एग्जिटिंग यू आर अगेन सेटिंग द वैल्यू ऑफ द लॉक एज जीरो अगेन। ठीक है, तो एंटर करते हुए जीरो और एग्जिट करते हुए क्या, सॉरी एंटर करते हुए आप इसको 1 कर देंगे क्योंकि जीरो तो था तब आप एंटर कर पाए, और जाते हुए आप उसको जीरो कर देंगे। बस आप इतना बात ध्यान में रखिए जब आप क्या करेंगे, लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, राइट। अब कहानी आगे सुनिए। नाउ लेट अस कंसीडर दैट वी हैव टू प्रोसेसेस। अब अज्यूम कर लो आपके पास क्लास दो प्रोसेसेस है, P1 and P2. Now the process P1 wants to execute the critical section. अब P1 को मान लीजिए critical section चाहिए। P1 gets into the entry section. Since the value of the lock is zero, वो देखता है कि लॉक का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो P1 उसको फटाफट क्या चेंज कर देगा, जीरो से 1 चेंज कर देगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब मीनवाइल क्या होता है, P1 प्रीएम्प्ट करा जाता है सीपीयू से। ये तो हो सकता है बिकॉज दीज आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है, तो P1 कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है, तो P1 को सीपीयू प्रीएम्प्ट कर देता है और P2 को शेड्यूल कर देता है। Now there is no other process in the critical section, critical section में तो और कोई process है नहीं, so the value of the lock variable is zero again. Now P2 also wants to execute the critical section. अब वो critical section में जाता है, फिर से lock का value क्या कर देगा, 1 कर देगा। Now CPU changes the P1 states from waiting to running. अब क्या होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद P1 जो है वो वेट कर रहा था, वेटिंग से रनिंग में चला गया। P1 is yet to finish its critical section. आपको पता है P1 तो स्टार्टिंग में रन कर ही रहा था, लेकिन P2 मीनवाइल आ गया, तो अभी P1 को तो दोबारा से जाना है। अब P1 क्या करता है, यहां पर आपको ध्यान से बात देखनी है। This point you need to consider that P1 has already checked the value of the lock variable. वो lock variable का value पहले से ही check कर चुका है और वो remember करता है, and it remembers that its value was zero. वो जानता है कि उसका वैल्यू उस समय जीरो था when it was previously checked. Hence, it also enters into the critical section. इसीलिए ये भी क्या करता है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता है विदाउट चेकिंग द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द लॉक वेरिएबल। लॉक वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू चेक करे बिना ही ये क्या कर रहा है, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस जा रहा है। Now we got two processes in the critical section. यहीं पर प्रॉब्लम आ गया, अब एक वक्त में हमारे पास दो प्रोसेसेस आ गए क्रिटिकल सेक्शन में। So according to the condition of the mutual exclusion, more than one process in the critical section must not be present. Hence lock variable mechanism does not guarantee the mutual exclusion. इसीलिए ये mutual exclusion guarantee नहीं करता है। ठीक है, so the problem with the lock variable mechanism is that at the same time more than one process can see the vacant tag and more than one process can enter into the critical section. Hence the lock variable doesn't provide the mutual exclusion. That is why it can't be used in general. इसीलिए क्लास हम इसको जनरली यूज कर भी नहीं सकते हैं, we cannot use it in general. हम इसको जनरल यूज कर भी नहीं सकते हैं। Now since this method is failed at its basic step में ही आप देख रहे हैं कि ये जो मेथड है ये फेल हो गया है, hence there is no need to talk about the other conditions. तो हमारे को दूसरे कंडीशंस तो देखने की जरूरत ही नहीं। I hope I am making myself clear. तो इस तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपको लॉक वेरिएबल में मिल ही नहीं रहा है, तो अगर यही नहीं मिल रहा है देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोसीड फर्दर। आपको फर्दर प्रोसीड करने की तो जरूरत ही नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आप लोगों को ये बात जो है ये समझ में आ गई है कि किस तरीके से आपको इन चार पैरामीटर्स को चेक करना है एक एक वेरिएबल के अंदर, राइट। ओके, now let us just move towards the next mechanism. Now the second mechanism came into the picture. Now what is the second mechanism? Second mechanism क्या कहता है? Second mechanism ये कहता है
कि अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेस्ट लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट लॉक मैकेनिज्म को यूज करेंगे। अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इससे मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग टेस्ट लॉक से हटकर लॉक वेरिएबल से हटकर टेस्ट लॉक में आकर देख सकते हैं, राइट। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो। सी, in lock variable mechanism, sometimes the process reads the old value of the lock variable and it enters the critical section. So due to this reason, more than one reason might get into the critical section. ये बात तो I think अब आप सबको समझ में आ गई है। So, however, the code shown in part 1 of the following section, मैं आपको अभी पार्ट दिखाऊंगी कोड का, अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया है विद पार्ट 2। उसमें क्या हुआ है, that does not affect the algorithm. एल्गोरिथम आपको इफेक्ट नहीं हुआ है, but by doing this we can manage to provide mutual exclusion to some extent but not completely. तो एक बार पहले आप कोड देखिए। ये तो हम जानते हैं, हम लोग लोड कर चुके हैं लॉक को इन रजिस्टर R1, फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद जीरो से। अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है जीरो के इक्वल, तो हम वापस उसी वाइल लूप में घूम रहे थे। दैट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू स्टेप नंबर 1 अगेन। लेकिन यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर, अगर मान लीजिए इक्वल टू जीरो आ जा रहा था, तो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर गोइंग टू स्टेप नंबर 4। और 4 में क्या करना है, वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लॉक एज 1। हम उसको 1 के हिसाब से वो कर ले रहे थे, चेंज कर ले रहे थे, राइट। अब देखिए द नेक्स्ट थिंग जो आपको सेक्शन 2 में ध्यान रखना है, वो सेक्शन 2 में जो ध्यान देना है वो क्या बात क्या है, वो ये है, हमने थोड़ा सा कोड चेंज किया है। वी हैव लोड द लॉक इन द रजिस्टर R0, देन वी हैव स्टोर्ड द वैल्यू। हमने जो है स्ट्रेट अवे पहले हमने वैल्यू स्टोर कर ली, मतलब अंदर घुसते ही मैंने क्या करा, लॉक का वैल्यू जो है मैंने चेंज कर कर क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया। ठीक है, पहले मैंने चेंज कर दिया लॉक का वैल्यू, 0 से 1 कर दिया। और 0 से 1 करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कंपेयर करा रजिस्टर को। ठीक है, और अगर वो इक्वल टू 0 नहीं होता है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ, देन आई एम गोइंग टू जंप दिस Z and Z stands for jump to step number 1। आप फिर से स्टेप नंबर 1 में जाएंगे और मान लीजिए वो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब आप क्या करेंगे, आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। काम तो हमारा एक ही है, दैट वी हैव टू प्रोसीड एंड वी हैव टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। हमें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, राइट। वही चीज है, वही सिनेरियो है यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक बार इसको। So you can see that in the updated version of the code, the value of the lock is loaded into the local register and then the value of the lock is set to 1. However, in step 3, previous value of the lock that is now stored in R2 is compared with 0. आप देख भी सकते हैं। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो किस लॉक की वैल्यू कंपेयर करेंगे, सेकंड स्टेप वाली। डेफिनेटली आप स्टेप नंबर 1 वाली तो नहीं कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर 1 वाली कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर आप स्टेप नंबर 2 वाली कंपेयर करेंगे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द प्रीवियस वैल्यू जो भी था, प्रीवियस वैल्यू जो लॉक का था, जब आप उसको कंपेयर करोगे, इफ दिस इज 0, अगर ये 0 होगा, then the process will simply enter into the critical section. अगर ये 0 होगा तब वो critical section में जाएगा, otherwise it will keep waiting by executing continuously in the loop. So what is the benefit of changing the lock over here? What is the benefit? वो step पहले करने का क्या फायदा हुआ? The benefit of setting the lock immediately to 1 by the process itself is that now the process which enters into the critical section carries the updated value of the lock variable. अब उसको updated value मिलेगा। अब मान लीजिए इन केस व्हेन इट गेट्स प्रीएम्प्टेड एंड व्हेन इट इज रीशेड्यूल्ड, देन इट विल आल्सो नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। मान लीजिए वो प्रीएम्प्ट हो गया, प्रीएम्प्ट होने के बाद उसको अगर आप शेड्यूल करोगे, रीशेड्यूल करोगे, तो वो सबसे पहले उसको जो प्रीवियसली लॉक का वैल्यू याद था वो नहीं देखेगा, वो फिर से चेक करेगा और वो चेक करेगा और वो देखेगा दैट यस द वैल्यू ऑफ द लॉक इज 1 राइट नाउ, सो इट विल नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगा, तो एक वक्त में डेफिनेटली एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस रह जाएगा। ठीक है, एंड regardless of the current value of the lock variable as it already knows the updated value of the lock variable। तो updated value ध्यान में रखकर वो वेट करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगा। तो जो भी प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में वो अपना प्रॉपरली रन करेगा। जब वो बाहर आएगा, when it would see कि अब मेरा लॉक का वैल्यू 0 हो गया, only then it is going to compare and then only it can enter the critical section। See,
क्लास टेस्ट लॉक मैकेनिज्म में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ये देखिए, ये जो टेस्ट लॉक है ये लॉक मैकेनिज्म है, ये है टेस्ट लॉक मैकेनिज्म। ये जो टेस्ट लॉक मैकेनिज्म है क्लास, इसके अंदर हम लोग ने क्या करा, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस जो भी वैल्यू है उसको चेक कर रहे हैं बार बार, और उसके बाद हम लोग लॉक की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही उसने देखा कि वैल्यू जो है लॉक की 0, इमीडिएटली प्रोसेस ने खुद ही उसको पहले 1 करा, अब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। सो हेयर वी आर कंपेयरिंग विद द अपडेटेड वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड वैल्यू है, तो कोई चांस ही नहीं है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस आ जाए, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेफिनेटली यहाँ पर आपका सेव हो जा रहा है, कहाँ पर, टेस्ट लॉक मैकेनिज्म में, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर TSL instruction. However, the solution provided in the above segment provides mutual exclusion to some extent, but it does not make sure that mutual exclusion will be always there. लेकिन हमेशा चेक हो ये आप गारंटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? There is a possibility of having more than one process in the critical section. एक पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस फिर से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। कैसे? सुनिए। नाउ what if the process gets preempted just after executing the first instruction of the assembly language written? जैसे ही उसने वैल्यू लोड कर लिए, यानी the value of the lock is equals to 0, मान लीजिए इसी समय पर, इसी इंस्ट्रक्शन पे मान लीजिए वो प्रीएम्प्ट हो गया। लेट्स जस्ट अज्यूम इसी समय पर वो क्या हो गया, वो प्रीएम्प्ट हो गया। अब क्या होगा? अब तो उसको वैल्यू क्या पता चलेगा कि नाउ द वैल्यू इज इक्वल टू 0, सो इन दैट केस इट विल कैरी द ओल्ड वैल्यू ऑफ द lock variable with it, and then again it can enter into the critical section regardless of knowing the current value तो वो 1 करता है, लेकिन वो जानता ही नहीं है, वो प्रीवियस वैल्यू फिर से 0 ले लेता है और फिर से ये प्रॉब्लम रह जाती है। सो दिस मे मेक द टू प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। अब क्या किया जाए? So to get rid of this problem, we have to make sure that preemption must not take place just after loading the previous value of the lock variable or before setting it to 1. यानी कि आपको ध्यान रखना है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के बीच में कोई preemption ना हो। इस चीज का अगर आपने ध्यान रखा, so to some extent you will definitely get mutual exclusion, right? So in order to address the problem, operating system provides a special instruction that is known as test set lock instruction, which simply loads the value of the lock variable into the register and then it sets to 1 immediately. The process which execute TSL first will enter into the critical section and no other process after that can enter until the first process comes out. No process can execute the critical section even in the case of preemption of the first process. तो आप देख सकते हैं इसकी असेंबली लैंग्वेज में व्हाट वी आर डूइंग। अब हम लोग जब टेस्ट TSL कर रहे हैं, दैट इज द टेस्ट सेट लॉक, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉक का नाम ही चेंज कर दे रहे हैं। हेयर वी हैव TSL लॉक। अब हमारे पास कौन सा लॉक है, TSL लॉक, जिसको हम लोग R0 में सेव कर रहे हैं। फिर उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं R0 से, हम चेक कर रहे हैं अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, फिर से आपने स्टेप नंबर 1 में जाना है, अगर वो है दैट मीन्स यू कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है कि नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस TSL मैकेनिज्म में तो डेफिनेटली गारंटी है। क्यों? सिंस अ प्रोसेस कैन नेवर बी प्रीएम्प्टेड जस्ट बिफोर सेटिंग द लॉक वेरिएबल। लॉक वेरिएबल को सेट करने से पहले वो प्रीएम्प्ट नहीं हो सकता है। Only one process can see the lock variable as 0 at a particular time and that's why mutual exclusion is guaranteed. Progress है कि नहीं चेक करते हैं। So, according to the definition of the progress, a process which doesn't want to enter into the critical section should not stop other process to get into it. So, in TSL mechanism, a process will execute the TSL instruction only when it wants to get into the critical section. अगर वो critical section में जाना चाहता है, तभी वो क्या करेगा, वो TSL mechanism वो progress करेगा, वो इस mechanism में जाएगा, otherwise उसको कोई problem ही नहीं। So, the value of the lock will always be 0. लॉक का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। कब? इफ नो प्रोसेस वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है तो लॉक तो हमेशा 0 ही रहेगा। इसका मतलब प्रोग्रेस भी इसमें गारंटी है। किस मैकेनिज्म में? टेस्ट सेट लॉक में। देन बाउंडेड वेटिंग, सॉरी दिस इज द सेकेंड ओनली, यही वाला है आपका टेस्ट सेट लॉक मैकेनिज्म।
नेक्स्ट वी हैव द बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में क्या है क्लास? बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर गारंटी नहीं होती है टेस्ट सेट लॉक में। सम प्रोसेस माइट नॉट गेट अ चांस फॉर सो लॉन्ग। ऐसा हो सकता है अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, P2 वेट कर रहा है और वेट ही करे जा रहा है फॉर सो लॉन्ग, एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर अ प्रोसेस इफ इट विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा कि नहीं हम गारंटी नहीं कर सकते हैं इसमें। then the bounded waiting is not there, but still we can keep this type of we can definitely keep this type of मैकेनिज्म विद अस। हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? डेफिनेटली क्यों रख सकते हैं? बिकॉज वी हैव जस्ट नाउ सीन कि दो हमारे जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रहे हैं। देन द आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, TSL doesn't provide the architectural neutrality also. It depends on the hardware platform. So the instruction is provided by the operating system. Some platform might not provide it. So architectural natural ये नहीं है, राइट। सो इस तरह के प्रोसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेटिंग नहीं है, पोर्टेबिलिटी नहीं है। नाउ कम्स द थर्ड टाइप, दैट इज प्रायोरिटी इन्वर्जन। तो ये अब आपका थर्ड तरह का मैकेनिज्म आया है। Now class, in TSL mechanism there can be a problem of priority inversion. ये भी आ सकता है। Now let's say that there are two cooperative processes, process 1 and process 2. Now the priority of P1 is 2 while that of P2 is 1. मान लीजिए जो priority है P1 की वो 2 है और P2 की 1 है, ठीक है। दैट मीन्स P2 पहले चलना चाहिए, बट P1 अराइव्स अर्लियर, लेकिन P1 पहले आ जाता है एंड इट गेट्स शेड्यूल्ड बाय द CPU. Now since it is a cooperative process and it wants to execute in the critical section, it will enter into the critical section by setting the lock variable to 1. Now P2 arrives in the ready queue. Now we know that the priority of P2 is higher than P1, hence according to the priority scheduling, P2 is scheduled and P1 got preempted. Now P2 is also a cooperative process and it also wants to get into the critical section. ये भी critical section में जाना चाहता है। Although P1 got preempted, अब हम जानते हैं P1 तो preempt हो गया है, लेकिन the value of the lock variable will be shown as 1. क्यों? क्योंकि P1 completely complete नहीं हुआ है, it still has to finish its critical section. So P1 needs to finish the critical section, but according to the scheduling algorithms, CPU is with P2. तो CPU जो है वो P2 के साथ है और P1 जो है उसको शेड्यूल भी करना है। Now P2 wants to execute the critical section. P1 को भी करना है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, और क्योंकि P2 की प्रायोरिटी ज्यादा तो P2 को भी करना है according to the scheduling algorithms. But according to the synchronization mechanism, critical section जो है वो होना चाहिए P1 के साथ। अब किसको critical section मिलेगा? P1 को मिलेगा या P2 को मिलेगा? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहती है कि आप P1 को P2 को दे दीजिए, और अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से बात करूं तो वो बोलती है कि P1 को दे दीजिए। तो जब इस तरह का क्लास लॉक आता है, दिस काइंड ऑफ अ लॉक वेयर ईच ऑफ द प्रोसेस, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ना ही एग्जीक्यूट कर रहा है ना ही कंप्लीट हो रहा है, सच काइंड ऑफ लॉक इज नोन एज अ स्पिन लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिन लॉक। अब स्पिन लॉक का मतलब ये नहीं है कि वो डेडलॉक सिचुएशन में, डेडलॉक का मतलब ये उसको कभी मिलेगा ही नहीं, इट वुड कीप ऑन मूविंग, इट वुड कीप रिवॉल्विंग। ये डेडलॉक सिचुएशन नहीं है। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये हाईलाइट करा है दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेडलॉक बिकॉज इट इज नॉट इन अ ब्लॉक्ड स्टेट। ये ब्लॉक्ड स्टेट में नहीं है। एक जो है प्रोसेस क्लास आपका रेडी स्टेट में, दूसरा रनिंग स्टेट में, लेकिन दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, दूसरी बात है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन लॉक, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब इस तरह का जो प्रोसेस है प्रायोरिटी इन्वर्जन, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ वी हैव अ टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच। टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है जो कि यूजर मोड पर इंप्लीमेंट होगा। अगेन इट इज अ बिजी वेटिंग सॉल्यूशन व्हिच कुड बी इंप्लीमेंटेड ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होता है क्लास, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टर्न वेरिएबल, दैट इज यूज्ड, जो कि एक्चुअली एक लॉक है। टर्न वेरिएबल में क्या होता है क्लास, दिस अप्रोच कैन ओनली बी यूज्ड ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस। इन जनरल लेट देयर आर 2 प्रोसेसेस। मान लीजिए एक प्रोसेस है Pi और एक प्रोसेस है Pj, और मान लीजिए ये एक वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम है टर्न। नाउ दिस इज बीइंग शेयर्ड अमंग between the 2 variables. So what is the pseudocode? Pseudocode क्या होगा? अगर मैं Pi की बात करती हूँ, अभी वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन में, वो चेक करता है जब तक उसकी टर्न i के इक्वल नहीं है तो वो मूव ही करेगा। जैसे ही i की इक्वल हुई तो वो क्या होगा, अपनी टर्न आते ही क्रिटिकल सेक्शन में मूव कर जाएगा, और जाते सार वो क्या करेगा, वो टर्न कर देगा टर्न इज इक्वल्स टू j, जाते हुए वो टर्न कर देगा j,
एंड देन अगेन इट इज बैक टू द नॉन क्रिटिकल सेक्शन। सेम चीज मान लीजिए अगर पीजे को करना है तो पीजे क्या करेगा, पीजे जो है पहले नॉन क्रिटिकल सेक्शन में वो चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, मेरा जो टर्न है वो जे हुआ, जे हुआ, जे हुआ, जब तक जे नहीं है वो चेक ही कर रहा है। जैसे ही जे हुआ वो कहाँ एंटर करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में। काम कर लिया, परफॉर्म कर लिया, जाते हुए वो टर्न को क्या कर गया, आई कर गया। अगेन इट इज एंटर इनटू, अगेन इट इज इनटू द नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द लॉक वेरिएबल अप्रोच वाज द फैक्ट दैट द प्रोसेस वाज एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन ओनली व्हेन द लॉक वेरिएबल इज 1। जैसे ही लॉक वेरिएबल 1 होगा तभी तो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तभी एक प्रोसेस एंटर कर सकता है। मोर देन वन प्रोसेस कुड सी द लॉक वेरिएबल एज 1 एट द सेम टाइम। एक वक्त में एक से ज्यादा भी ऐसे प्रोसेस हो रहे थे जो कि लॉक वेरिएबल का वैल्यू 1 देख पा रहे थे, इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी नहीं हो रहा था। बट दिस प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड हेयर इन द turn variable approach. Now a process can enter into the critical section only in the case when the value of the turn variable is equals to the PID. जैसे ही अगर PI है तो अगर उसका टर्न वेरिएबल I होगा तभी वो एंटर करेगा, अदरवाइज तो वो डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। सो देर आर ओनली टू वैल्यूज पॉसिबल, या तो I या तो J। इफ इट इज not I, then it is definitely J, or vice versa. In the entry section in general, the process PI will not enter in the critical section until its value is J, or PJ will not enter into the critical section until its value is I. Initially we have two processes PI and PJ and they want to execute, मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर जो टर्न वेरिएबल है वो I के इक्वल हो गया। अब PI को चांस मिल गया कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए, और वो तब तक रहेगा जब तक PI जो है वो तब तक रहेगा जब तक PI कंप्लीट ना करे, और तब तक टर्न की वेरिएबल क्या वैल्यू क्या रहेगी, I रहेगी। और जाते सार वो क्या करेगा, जैसे ही PI फिनिश करेगा अपने काम को, इट इज गोइंग टू असाइन द टर्न इज इक्वल्स टू J while exiting, जो कि एक अच्छी बात है। Now PJ can get the chance to enter into the critical section and the value will remain J until PJ finishes, right? अब देखते हैं इसमें सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो डेफिनेटली इट इज देयर इन एवरी केस। द प्रोसीजर वर्क्स only for two processes. The pseudocode is different for both the processes. The process will only enter when it sees the turn variable equals to the PID, otherwise it will not enter. Progress class इसमें गारंटी नहीं होती है। मान लीजिए अगर PI को एंटर नहीं करना है क्रिटिकल सेक्शन में अपने टर्न में, तो PJ तो ब्लॉक हो गया ना इनफाइनाइट टाइम के लिए। जस्ट अज्यूम सपोजडली टर्न इज इक्वल्स टू I हुआ और PI को मान लीजिए एंटर नहीं करना था, और टर्न इज इक्वल्स टू I हुआ और उसको एंटर भी नहीं करना। अब उसको एंटर नहीं करना लेकिन PJ को एंटर करना था, अब टर्न तो कभी J होगा ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट्स? अब जो टर्न है वो तो कभी भी J नहीं होगा। जब टर्न J ही नहीं होगा तो PJ तो इनफाइनाइट टाइम के लिए रुक ही गया। दैट मीन्स प्रोग्रेस इस तरह के मैकेनिज्म में नहीं होती है। ठीक है, देन पोर्टेबिलिटी, सॉल्यूशन प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी, इट इज अ प्योर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ओएस में इसको चला सकते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म में क्लास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस नहीं है, बाउंडेड वेटिंग है, पोर्टेबिलिटी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म। इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग लॉक मैकेनिज्म से स्टार्ट होकर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म लिया। इसमें क्या हो रहा है, नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोग्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय आवर सिंक्रोनाइजेशन। ये तो आपको पता है, बाउंडेड वेटिंग हो ना हो, पोर्टेबिलिटी हो ना हो, लेकिन फर्स्ट जो दो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और आपका प्रोग्रेस, ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा that in turn variable mechanism progress was not provided due to the fact that the process which doesn't want to enter into the critical section doesn't consider other interested processes as well. So the other process will also have to wait, उसको भी wait करते रहना पड़ रहा है regardless of the fact that there is no one inside the critical section. So if the operating system can make use of an extra variable, हम एक extra variable का use करेंगे that along with the turn variable our problem would be solved to some extent. अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म। इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म एक एक्स्ट्रा बूलियन वेरिएबल यूज करता है। देखिए नॉन क्रिटिकल सेक्शन PI के लिए देखिए, अब हमने इंटरेस्टेड ऑफ I इज इक्वल्स टू ट्रू कर लिया। मान लीजिए इंटरेस्टेड ऑफ I जो है वो ट्रू कर लिया। अब चेक कर रहे हैं क्या इंटरेस्टेड ऑफ J ट्रू है। I पहले चेक करता है J ट्रू है कि नहीं,
पहले वो ये चेक करता है, मान लीजिए वो जे अगर ट्रू हो जाएगा तो जे एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, और इंटरेस्टेड ऑफ आई जो है वो हो जाएगा फॉल्स। लेकिन मान लीजिए इंटरेस्टेड ऑफ आई जो है वो इक्वल टू ट्रू किया, और हमने किया कि इंटरेस्टेड ऑफ जे इज इक्वल टू मान लीजिए ये इक्वल टू ट्रू नहीं आता, तो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो क्या हुआ, वो इंटरेस्टेड वाला जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, और आते सार वो क्या कर देगा, इंटरेस्टेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू फॉल्स। लाइकवाइज आप पीजे के लिए भी देख सकते हैं, ये क्या करेगा, अभी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है, पहले वो ये चेक करेगा कि जे जो है वो ये चेक करेगा कि क्या आई जो है, जे जो है वो ये चेक करेगा क्या आई इंटरेस्टेड है। अगर आई इंटरेस्टेड है तो उसको क्या करना है, वेट करना है। अगर आई इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और अपने आप को फॉल्स कर देना है while it is exiting, right? So in this mechanism an extra variable interested is used. Now this is a boolean variable which is used to store the interest of the processes to get inside the critical section. Now, a process which wants to enter into the critical section, it is going to first check the entry section whether the other process is interested to get inside or not. Now, the process will wait for the time until the other process is interested. In the exit section, the process makes the value of the interest variable false so that next जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है इट कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। वही स्टोरी जो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। आप टेबल देख लेते हैं। इस टेबल से क्या होता है, यहाँ पर आप इंटरेस्ट वेरिएबल्स दोनों प्रोसेसेस के देख सकते हैं और सिनारियो देख सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन हुआ जब पीआई इंटरेस्टेड है और पीजे भी इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर उस प्रोसेस को चांस मिलेगा जिसने सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया। मान लीजिए पीआई इंटरेस्टेड है तो पीआई चलेगा, मान लीजिए पीजे इंटरेस्टेड है तो पीजे चलेगा, मान लीजिए दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई भी नहीं चलेगा। अब देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन द इंटरेस्टेड वेरिएबल इफ वन प्रोसेस इज इंटरेस्टेड इट इज गेटिंग इनटू द सीपीयू, अदर प्रोसेस विल वेट and it becomes uninterested, therefore mutual exclusion is guaranteed. Progress, if a process is not interested, वो कोई दूसरे को तो stop नहीं कर रहा है, definitely progress is there. Bounded waiting. Bounded waiting के लिए let us consider two processes PI and PJ which are the cooperative, and let us just assume that they want to execute the critical section. मान लेते हैं कि bounded waiting हमें देखना है। तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा है क्लास, इंटरेस्ट वेरिएबल दोनों प्रोसेसेस का फॉल्स है। लेट्स जस्ट अज्यूम दोनों प्रोसेसेस का फॉल्स है। नाउ लेट्स से जो पी आई है इट शोज द इंटरेस्ट टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। मान लीजिए पी आई जाना चाहता है। नाउ इट सेट्स द इंटरेस्ट वेरिएबल टू ट्रू, ये अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को ट्रू कर देता है, एंड इट चेक्स वेदर पीजे इज ऑल्सो इंटरेस्टेड और नॉट। अपने आप को तो ट्रू कर रहा है, साथ में चेक कर रहा है पीजे इंटरेस्टेड है कि नहीं। सिंस अदर प्रोसेसेस इंटरेस्ट वेरिएबल वो देखता है कि उसका इंटरेस्ट फॉल्स आ रहा है तो पी आई डेफिनेटली एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। मीनवाइल पीआई प्रीएम्प्ट हो जाएगा और पीजे मान लीजिए शेड्यूल होता है, क्योंकि वो भी एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, उसको भी मौका मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। सो इट शोज इट्स इंटरेस्ट बाय सेटिंग द इंटरेस्ट वेरिएबल एज ट्रू। उसको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट वेरिएबल ट्रू करना है। ये भी चेक करता है क्या दूसरा प्रोसेस भी इंटरेस्टेड है कि नहीं। वी शुड नोटिस दैट पीआई तो पहले ही प्रीएम्प्ट हो चुका है, लेकिन उसका इंटरेस्ट वेरिएबल वैल्यू जो होगा वो ट्रू होगा। That means it needs to further execute, so PJ will not get the chance and it will get stuck in the while loop. तो इस सिचुएशन में PJ देखता है कि उसका इंटरेस्ट तो अभी है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता PJ को मौका नहीं मिलेगा, PJ को मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हो गया। Meanwhile, CPU changes the PI state from block to running. PI जो है अब वो ब्लॉक से रनिंग में चला गया। PI is yet to finish its critical section, और वो फिनिश कर देता है, और एग्जिट करते करते वो अपना इंटरेस्ट वेरिएबल फॉल्स कर देता है। नाउ अ केस कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि PI दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और फिर से अपने वेरिएबल को ट्रू करना चाहता है और चेक करता है कि जो PJ है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। अब मान लेते हैं PJ इंटरेस्टेड है, तो पीआई स्टक हो गया वाइल लूप में, और वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कि पीजे अनइंटरेस्टेड नहीं होता। सिंस पीजे स्टिल स्टक इन द वाइल लूप वेटिंग फॉर पीआईज इंटरेस्टेड वेरिएबल टू बिकम फॉल्स, इस सिचुएशन में आपने क्या देखा, बोथ द प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर एंड thus नन ऑफ देम इज गेटिंग द क्रिटिकल सेक्शन। इस तरह के कंडीशन को हम क्लास बोलते हैं डेडलॉक, एंड बाउंडेड वेटिंग कैन नेवर बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें डेडलॉक हो गया। वो उसका इंटरेस्ट वेरिएबल देख रहा है, दूसरे का इंटरेस्ट वेरिएबल बोल रहा है हाँ, अपना इंटरेस्ट वेरिएबल भी है उसका हाँ, दूसरे वाला जो इंटरेस्ट वेरिएबल है उसको सीपीयू मिला, लेकिन मिलने के बाद वो फिर प्रीएम्प्ट हो गया क्योंकि इसका मान लीजिए प्रायोरिटी ज्यादा था या कोई और रिसोर्सेस ज्यादा था लाइकवाइज। तो आप बोल सकते हैं इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि बाउंडेड वेटिंग नहीं मिलता है।
Then architectural neutrality. Now this is a complete software mechanism executed in user mode, therefore it guarantees portability or architectural neutrality. So bounded mutual exclusion है, progress है, bounded waiting नहीं है, portability है, right? अब चलते हैं next solution में class, that is Patterson solution. Patterson solution क्या है? This is a software mechanism implemented at the user mode. It is a busy waiting solution that could be implemented for only two processes. ये दो ही processes के लिए implement होगा. यहाँ पर आप दो variables use करते हैं, एक होता है turn variable, एक होता है interested variable. जो अभी तक हमारे implementations पीछे से होते आ रहे हैं, वो features हमने रखे हैं. ठीक है, अब आप कोड देख सकते हैं. Hash define n2, hash define true 1, then hash false 0, int interested n is equals to false, int turn void entry section int process, int other is equals to 1 minus process, interested process is equals to true, turn is equals to process, while interested of other is equal to true and turn is equals to process. जब ये होगा then you have void exit section in process and interested process जाते वक्त क्या कर दिया आपने, false कर दिया. So till now each of our solution is affected by one or the other problem. However, the Peterson solution provides you all the necessary requirements. जैसे अगर आप देखेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और पोर्टेबिलिटी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है. आप देखिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है. आपने क्या किया, ऊपर n2 डिफाइन कर दिया, ट्रू 1 डिफाइन कर दिया, फॉल्स 0 डिफाइन कर दिया. अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पर आपने बता दिया कि दो ही प्रोसेसेस के लिए पैटर्सन काम करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, इंट इंटरेस्टेड n आप चेक कर रहे हैं इज इक्वल्स टू फॉल्स. मान लीजिए अगर इंटरेस्टेड आपका जिसका भी है अगर वो फॉल्स आ रहा है और मान लीजिए किसी एक का ट्रू भी आएगा, ट्रू इज इक्वल्स टू 1, उसका टर्न चेक होगा. मान लीजिए उसका टर्न 1 हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो एंट्री सेक्शन में जाएगा. अब एंट्री सेक्शन में जैसे ही उसकी टर्न आई वो जाएगा, पहले वो अदर चेक करेगा. अदर कैसे मिलेगा, 1 माइनस प्रोसेस, बिकॉज देयर आर टू प्रोसेसेस. वो चेक करेगा इंटरेस्टेड प्रोसेस, अपना तो उसने ट्रू कर दिया. फिर वो देखेगा कि जो इंटरेस्टेड है दूसरा अगर इंटरेस्टेड है तो उसने यहाँ पर वेट करना है, अदरवाइज उसने टर्न दे देनी है फर्स्ट प्रोसेस को. चेक करता है, यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको दो चीजें चेक करनी है पैरेलली. एक तो ये चेक करना है इंटरेस्टेड ऑफ अदर, क्या दूसरा जो इंटरेस्टेड है वो ट्रू है, एंड जो प्रोसेस है मतलब जो भी सेकंड प्रोसेस है उसकी टर्न भी आनी चाहिए. मान लीजिए आपकी टर्न भी आई है और अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं तभी आप इस सेक्शन को रन करेंगे. इनमें से एक भी फॉल्स होगा तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और इंटरेस्टेड को फॉल्स कर जाएंगे. मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना क्लास की एक प्रोसेस है P1 और मान लीजिए वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उसका टर्न आ गया है. तो अगर उसका टर्न आ गया है वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगा. वो तभी एंटर करेगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, वो इंटरेस्टेड भी होना चाहिए और उसकी टर्न भी आनी चाहिए. ठीक है, तो पहले तो आपने ऊपर इंटरेस्टेड भी दे दिया और टर्न भी दे दिया, तो उसकी टर्न भी ट्रू होनी चाहिए और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा. तो इससे तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं अगर उसकी टर्न भी है वो इंटरेस्टेड भी है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो डेफिनेटली होगा ना. यू पीपल कैन वेरी वेल रिलेट. प्रोग्रेस भी होगा. मान लीजिए दूसरा वाला जो है उसका टर्न आया वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या पहले वाले को रोकेगा, नहीं रोकेगा. सो प्रोग्रेस इज ऑल्सो देयर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ऑल्सो देयर. बाउंडेड वेटिंग, हम ये भी पहचान लेंगे कि जो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है वो कितनी देर तक वेट कर रहा है, कितनी देर तक रोक रहा है. और पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल तो है ही क्योंकि दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विच इज सपोर्टेड एट एनी प्लेटफॉर्म, सो यू कैन यूज इट एनीवेयर. तो एनालिसिस यहाँ पर किया गया है. सो दिस इज अ टू प्रोसेस सॉल्यूशन. लेट अस कंसिडर टू कोऑपरेटिव प्रोसेस P1 एंड P2. एनालिसिस हमें करना बहुत जरूरी है. सो इनिशियली द वैल्यू ऑफ, हम एक assumption ले रहे हैं that the value of the interested variable and the turn variable is 0. इनिशियली दोनों वैल्यूज 0 थी. Initially process P1 arrives and wants to enter into the critical section. मान लीजिए P1 आ जाता है और P1 critical section में जाना चाहता है. It sets its interested variable to true. वो interested variable आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 में वो true कर देता है क्योंकि उसको execute होना है. And it also sets its turn to 1. वो अपनी टर्न को भी 1 कर देता है. Since the condition given in the line 5 में क्या condition given है, ये दोनों condition interested और turn दोनों होना चाहिए और दोनों मान लीजिए P1 प्रोसेस का है, सो इट इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. कैसे रन करेगा, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 क्रिटिकल सेक्शन. देखिए
स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। ये तो हुआ एक सिनेरियो। मीनवाइल मान लेते हैं प्रोसेस P1 गॉट प्रीएम्प्टेड एंड प्रोसेस P2 गॉट शेड्यूल्ड। मान लीजिए P1 जो है वो प्रीएम्प्ट हो गया और P2 शेड्यूल हो गया। P2 ऑल्सो वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और वो एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 ऑफ द एंट्री सेक्शन। 5 में क्या होता है, वो स्टक हो जाता है। अब आपको मैंने बता ही दिया क्यों स्टक हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अदर वेरिएबल जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है वो अभी भी ट्रू है। तो वो कैसे रन करेगा, P2 1, 2, 3, 4, 5 तो चला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गया, वो स्टक हो गया। P1 अगेन गॉट शेड्यूल्ड। अब मीनवाइल क्या हुआ, P1 फिर शेड्यूल हो गया। अब शेड्यूल होने के बाद उसने अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लिया बाय एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन एट नंबर 6। यहाँ पर उसने अपना पूरा काम करने के बाद अपना इंटरेस्टेड प्रोसेस फॉल्स कर लिया। अब जब उसने फॉल्स कर लिया, नाउ P2 चेक्स। P2 देखता है क्या वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और वो देखता है सिंस अदर्स इंटरेस्टेड वेरिएबल बिकम फॉल्स। P2 क्या करता है, P2 अब 6 को रन करेगा और P2 स्ट्रेट अवे कहाँ चला जाएगा, सॉरी P1 6 को रन करेगा और P2 स्टेटमेंट 5 और क्रिटिकल सेक्शन डायरेक्टली। स्टेटमेंट 5 ट्रू हुआ, फटाफट वो कहाँ चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में। नाउ एनी ऑफ द प्रोसेस में एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, हेंस द प्रोसीजर अकर्स इन अ साइक्लिक ऑर्डर। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में बोल सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज फॉर श्योर, एंट्री सेक्शन में ही हम चेक कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बारे में, तो एक प्रोसेस तब तक एंटर नहीं करेगा जब तक दोनों वैल्यूज चेक नहीं हो रही हैं। प्रोग्रेस, एक अनइंटरेस्टेड प्रोसेस कभी भी दूसरे किसी प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर रहा है तो प्रोग्रेस भी है। बाउंडेड वेटिंग, पैटर्सन सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म फेल हो गया बिकॉज उसके अंदर बाउंडेड वेटिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक डेडलॉक कभी होगा ही नहीं, क्योंकि द प्रोसेस विच फर्स्ट सेट्स द टर्न वेरिएबल वही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा फॉर श्योर। देयरफॉर अगर एक प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है एग्जीक्यूट, कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, देन इट विल डेफिनेटली गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन इन इट्स नेक्स्ट चांस। अभी नहीं मिला, नेक्स्ट चांस में उसको मिलेगा, लेकिन डेडलॉक कभी नहीं होगा, तो बाउंडेड वेटिंग हो गया। पोर्टेबल तो है ही। सो ऑल दीज सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड इन पैटरसन सॉल्यूशन, राइट। सो पैटरसन सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आपको दिमाग में रखना है क्लास, राइट। नेक्स्ट वी हैव द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म विदाउट बिजी वेटिंग. So till now all the solution we have seen till now were intended to provide mutual exclusion with busy waiting. Busy waiting के साथ था. However, busy waiting is not an optimal allocation of resources क्योंकि हम CPU को busy कर रहे हैं all the time in checking the while loops condition continuously, although the process is waiting for the critical section to become available. So all the synchronization mechanism with busy waiting, they are also suffering from priority inversion problem, and that is there is always a possibility of a spin lock whenever there is a process with higher priority which has to wait outside the critical section, right? So however, these problems need a proper solution without busy waiting and without priority inversion. So here we have another mechanism जो इस problem को भी overcome कर सकता है, that is sleep and wake, या फिर कभी कभी हम इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब ये क्या है, सुनिए। अज्यूम दैट वी हैव टू सिस्टम कॉल्स, एक सिस्टम कॉल का नाम है स्लीप, एक सिस्टम कॉल का नाम है वेक। नाउ द प्रोसेस व्हिच कॉल्स स्लीप, जिसको अगर हम स्लीप कॉल कर देंगे इट गेट्स ब्लॉक्ड, व्हाइल द प्रोसेस व्हिच कॉल्स वेक, वो क्या हो जाएगा, वो वेक अप हो जाएगा। नाउ देयर इज अ पॉपुलर एग्जांपल कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम सिमुलेटिंग स्लीप एंड वेक मैकेनिज्म। अब होता क्या है, इफ द क्रिटिकल सेक्शन इज नॉट एम्प्टी, अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी नहीं है, then the process can go and sleep. It will be waked up by other process which is currently executing inside the critical section. So the process inside can get inside the critical section. तो process critical section में भी जा सकता है। अब देखिए producer consumer में क्या होता है। Now let us just say that there are two processes. One process writes something, other process reads that thing. The process which is writing is called the producer, while the process which is reading is called the consumer. Now in order to read and write, both of them uses a buffer. दोनों को एक buffer use करना पड़ता है. The code that simulates the mechanism to provide this is given as below. You can see n maximum हमने ले लिया slots, maximum buffer के अंदर slots ले लिया 100. Then count is equals to 0. ये count करेगा कितने items है मेरे buffer में.
उसके बाद void प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, आइटम को प्रोड्यूस कर रहा है। जब सिचुएशन आपकी ट्रू हो रही है वो क्या कर रहा है, आइटम इज इक्वल्स टू प्रोड्यूस आइटम, इट प्रोड्यूसेस एन आइटम। नाउ इफ माय काउंट इज इक्वल टू n, यानी कि मेरा बफर जैसे ही फुल हो जाएगा मेरा प्रोड्यूसर सोने चले जाएगा, माय प्रोड्यूसर विल स्लीप, so sleep system call would be called insert item, otherwise it is going to insert and it is incrementing the count also. Now if my count is equal to 1, yani ki my producer will wake up the consumer if there is at least one item in the buffer. अगर एक भी बफर में आइटम आ जाएगा तो प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को वेकअप कर देगा। अब प्रोड्यूसर वेकअप, कंज्यूमर का क्या काम है, वेकअप कंज्यूमर मैंने कॉल किया, कंज्यूमर वाला कोड देख लीजिए, इंट आइटम व्हाइल ट्रू इफ काउंट इज इक्वल टू ट्रू सॉरी 0, यानी कंज्यूमर विल स्लीप इफ द बफर इज एम्प्टी, अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर सो जाएगा, अगेन यू आर गोइंग टू कॉल स्लीप। देन आइटम इज इक्वल्स टू रिमूव आइटम, अब आपने क्या करना है, उसका काम क्या है, कंज्यूमर का कंज्यूम करना, तो वो कॉल कर रहा है रिमूव आइटम, एक एक कर कर आइटम को ले रहा है और काउंट को क्या कर रहा है, काउंट को वो -1 कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ माय काउंट इज इक्वल टू n-1, मान लीजिए मेरा काउंट n-1 के इक्वल हो गया, मतलब इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्लॉट अवेलेबल इन द बफर, अगर एक भी स्लॉट अवेलेबल होगा तो जो कंज्यूमर है इट विल वेक अप द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर को वेकअप कर देगा, ठीक है, वो जो है वो वेकअप कर देगा प्रोड्यूसर को, राइट। सो वेकअप प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर का काम क्या है, यहाँ पर ये आइटम को कॉल करे जा रहा है और आइटम को कंज्यूम करे जा रहा है। अब आप एक चीज नोट करे हो, अगर आपको कंज्यूम करना है तो आपको प्रोड्यूसर उठाएगा, प्रोड्यूसर विल वेक यू अप, और अगर आपको सोना है तो भी आपको प्रोड्यूसर बार बार बता रहा है या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन हो रही है। तो ये इस कोड में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कैसे, लेट्स हैव अ लुक। The producer produces an items and inserts into the buffer. आप assume करिए प्रोड्यूसर ने एक आइटम को प्रोड्यूस करा, बफर के अंदर स्टोर किया। Now the value of the global variable count got increased at each इंसर्शन, हर एक इंसर्शन पर मान लीजिए एक इंसर्शन काउंट बढ़ा, एक इंसर्शन काउंट बढ़ता जा रहा है। ना इफ द बफर इज फिल्ड कंप्लीटली, मान लीजिए बफर पूरी की तरीके से फिल हो गया एंड देयर इज नो स्लॉट अवेलेबल, देन द प्रोड्यूसर विल स्लीप, तो प्रोड्यूसर स्लीप हो जाएगा, अदरवाइज इट विल कीप इंसर्टिंग। अब कंज्यूमर एंड में क्या हो रहा है, ऑन द कंज्यूमर एंड द वैल्यू ऑफ द काउंट गेट्स डिक्रीज्ड, वहां पर क्या हो रहा है, ये तो प्रोड्यूसर साइड पे, कंज्यूमर में क्या हो रहा है, वो वैल्यू को डिक्रीज करता जा रहा है, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज एट ईच कंजम्पशन। ना इफ द बफर इज एम्प्टी एट ईच पॉइंट, मान लीजिए बफर एम्प्टी हो जाता है, कंज्यूमर क्या करेगा, सो जाएगा, अदरवाइज वो कंज्यूम करता जाएगा और वो वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा। नाउ द कंज्यूमर विल बी वेक्ड अप बाय द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को उठाने का काम किसका है, प्रोड्यूसर का, कब, अगर एक भी आइटम आपके बफर में होगा, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर विल बी वेक्ड अप बाय द कंज्यूमर इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्लॉट अवेलेबल इन द बफर सो दैट द प्रोड्यूसर कैन राइट दैट। वेल, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब आप ये देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे काम कर रहे हैं, दिस इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है इस तरह के प्रॉब्लम में, देखिए। Well, the problem arises in the case when the consumer got preempted. मान लीजिए कंज्यूमर को आपने preempt करा just before it was about to sleep, वो सोने वाला ही था, आपने उसको उठा दिया, सोने वाला ही था और आपने उसको उठा दिया। आप खुद भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, अगर कोई सोने वाला हो और उसको कोई इमरजेंसी काम आ जाए और उसको उठना पड़े, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका काम प्रॉपरली नहीं होगा। तो अब क्या होगा, नाउ द कंज्यूमर इज नीदर स्लीपिंग नॉर कंज्यूमिंग, ना वो सो रहा है ना वो कंज्यूम कर रहा है। सिंस द प्रोड्यूसर इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंज्यूमर इज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग, देयरफॉर इट कीप वेकिंग द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को तो एक्चुअली मालूम नहीं है ना कि कंज्यूमर सोने वाला था, तो वो उसको उठाता रहता है। व्हाइल द कंज्यूमर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कंज्यूमर जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि उसको नहीं पता है कि प्रोड्यूसर उसको उठा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सोए जा रहा है। अगर वो सो रहा है तो, अगर आप सो रहे हो तो कंज्यूमर जो हो, अगर आप मानते हो कि आप कंज्यूमर हो, तो आप प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, इससे क्या होता है, वी आर वेस्टिंग द सिस्टम कॉल्स, हम सिस्टम कॉल को वेस्ट कर रहे हैं। When the consumer gets scheduled again, अब जब दोबारा से कंज्यूमर को हम शेड्यूल करेंगे, it will sleep because it was about to sleep when it was preempted. जिसको सोना है वो सो के ही रहेगा, वही सेम सिचुएशन है यहाँ पर। आपने उसको उठाया और वो सोने ही वाला था, आपने उसको उठा दिया, लेकिन वो फिर से प्रियम्प्ट होने के बाद फिर से अगेन वो शेड्यूल हो गया, लेकिन वो फिर से कहाँ जाएगा,
सोने चला जाएगा। प्रोड्यूसर विल कीप राइटिंग इन द बफर, प्रोड्यूसर का काम है कि वो बफर में लिखता जाएगा। एंड इट गॉट फिल्ड आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद वो फिल हो जाएगा। प्रोड्यूसर भी सो जाएगा उस टाइम पे, कीपिंग इन द माइंड दैट कंज्यूमर उसको उठा देगा क्योंकि एक स्लॉट अवेलेबल है, और कंज्यूमर भी सो रहा है इस फैक्ट को बिना जाने कि प्रोड्यूसर उसको उठा देगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मुझे कंज्यूमर उठाएगा, कंज्यूमर सोच रहा है मुझे प्रोड्यूसर उठाएगा। कंज्यूमर क्यों सो गया? क्योंकि उसको लग रहा था प्रोड्यूसर अभी प्रोड्यूस करेगा, अभी उसने करा नहीं है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्यों सो गया? उसको लग रहा है अभी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कंज्यूम करने दो, तो मैं बाद में प्रोड्यूस करूंगा, लाइक दैट, राइट? सो द कंज्यूमर इज ऑल्सो स्लीपिंग। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ डेडलॉक। ये क्या हो गया? डेडलॉक, where neither the producer nor the consumer is active, and they both are waiting for each other to wake them up. Now this is a serious problem which needs to be addressed. So here we are using a flag bit to get rid of this problem. Now what is a flag bit? Flag bit could be used in order to get rid of this problem. The producer can set a bit. जो producer है वो flag bit को set कर सकता है when it calls the wake up on the first time में वो उस बिट को सेट कर सकता है। when the consumer gets scheduled, वो चेक करता है बिट को। now the consumer will now get to know that the producer tried to wake him up. उसको बिट से पता चल जाएगा कि उसको उठाने की कोशिश की गई है, इसीलिए it will not sleep and it will remain in the ready state to consume whatever the producer is going to produce further, right? So this solution works well for one pair of producer and consumer. What if there are n producer and n consumers? There we need to maintain an integer which can record how many wake up calls have been made and how many consumers need not sleep. इस तरह के integer को class हम लोग क्या बोलते हैं? Semaphore. एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, तो आपने एक फ्लैग बिट बना लिया। फ्लैग बिट बड़ा अच्छे से काम किया, उसने बता दिया। अगर फ्लैग बिट आपने सेट करा, मान लीजिए फ्लैग बिट को आपने 1 करा, तो कंज्यूमर सोता ही नहीं है, उसको पता है कि वो उसको उठाया गया था, दोबारा से भी उठाया जा सकता है। सो इट रिमेन्स इन द रेडी क्यू। व्हाट इफ देयर आर n प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट इफ देयर आर n कंज्यूमर्स? तो उस सिचुएशन में क्लास हमें वेकअप कॉल्स कौन किसको कितनी बार वेकअप कर रहा है उसका एक सिनेरियो, एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उस रिकॉर्ड को हमने एक इंटीजर वेरिएबल में रखा है, उसका नाम है सेमाफोर्स। सो दैट इज समथिंग नोन एज सेमाफोर्स, right? So let us just talk about semaphores. So to get rid of the problem of wasting the wake-up calls, Dijkstra, now that was the name of the scientist, he proposed an approach which involves storing all the wake-up calls. क्या होगा? सारे wake-up calls हम इसमें store करेंगे. Dijkstra states that instead of giving the wake-up calls directly to the consumer, producer can store the wake-up call in a variable. उसको directly consumer को देने की जगह हम एक variable में store कर लेते हैं. Any of the consumers can read it whenever it needs to do. जिसको भी उसको रीड करना है, जब भी रीड करना है, उसको रीड कर लेगा। तो सीमाफर क्या होते हैं क्लास? सीमाफर इज द वेरिएबल्स which stores the entire wake up calls that are being transferred from producer to consumer. वो सारे वेकअप कॉल्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है, इसी को बोला जाता है सेमाफर्स। इट इज अ वेरिएबल on which read, modify and update happens automatically in the kernel mode. kernel mode में automatically read, modify और update होता रहता है। Semaphore cannot be implemented in the user mode. Definitely user mode में आप इसको implement कर ही नहीं सकते हो। कर दिए, क्योंकि अगर आप कर दिए तो क्या होगा? race condition may arise when two or more definitely arise में क्या? it will definitely arise when two or more processes are trying to access the variable simultaneously. So it always needs the support from operating system. तो उसके लिए we have something known as kernel. kernel क्या है? अब हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। So according to the demand of the situation, semaphore could be divided into two categories. Now semaphore is further class of two types. One is counting semaphore and another one is the binary semaphore, or you can also call it as mutex. इसको class हम लोग mutex भी कहते हैं. So what is counting semaphore? Now there are the scenarios in which more than one process needs to execute in the critical section simultaneously. ऐसा तो होता ही है. However, counting semaphore could be used when we need to have more than one processes in the critical section at the same time. तो आप counting variable use कर सकते हैं. Like we have created struct semaphore int value. Now here the processes that can enter the critical section simultaneously, here we can get the value over here. Q type L. Now L contains the
सेट ऑफ द प्रोसेसेस विच गेट ब्लॉक्ड, कौन कौन से ब्लॉक हो गए उसको आप क्यों कर लो, किस किस को अभी चाहिए उसको आपने क्रिटिकल सेक्शन उसके आपने इंट वैल्यू में डाल लिया. नाउ देयर इज अ डाउन सेमाफोर. डाउन सेमाफोर में क्या हो रहा है, आप s यानी सेमाफोर s जो वैल्यू है s डॉट वैल्यू -1 कर रहे हैं. -1 इससे क्या हो रहा है, सेमाफोर्स वैल्यू विल गेट डिक्रीज्ड when a new process enter into the critical section. एक नया प्रोसेस आया तो सेमाफोर का वैल्यू भी 1 से माइनस हो गया. अब चेक होता है, इफ माई s डॉट वैल्यू इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 हुआ यानी नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स यू हैव टू पुट द प्रोसेस इन पीसीबी इन l, यानी अब आप उसको ब्लॉक कर देंगे. ठीक है, अभी हमने देखा ना l क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट वाला. सो इफ द वैल्यू इज नेगेटिव देन द प्रोसेस विल गेट इनटू द ब्लॉक्ड स्टेट. तब उस प्रोसेस को आपने ब्लॉक कर दिया और आपने उसको स्लीप कर दिया. अदरवाइज आपने अप रिटर्न कर लेना है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप सीमाफोर क्या होता है. अप सीमाफोर में आप s डॉट वैल्यू को +1 कर रहे हैं. Semaphore value will get increased when it makes an exit from the critical section. Critical section से एक गया तो यहाँ पर आपने एक सेमाफोर का वैल्यू +1 कर दिया. आपने फिर चेक करा, if the value is less than or equal to 0, you have to select a process from the blocked state. अगर वैल्यू आपकी जो है सेमाफोर की पॉजिटिव आ रही है तो आपको एक ब्लॉक क्यू में एक प्रोसेस को आपको वेकअप भी करना है. सो हेयर यू कैन मेक यूज ऑफ द वेकअप कॉल एंड देयर यू कैन वेरी वेल मेक यूज ऑफ द स्लीप कॉल. तो आप देख सकते हैं जब आप डाउन कॉल कर रहे हैं क्लास तो आप स्लीप सिस्टम कॉल को यूज कर रहे हैं. जब आप अप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप वेकअप कर रहे हैं. समझ रहे हो बात को, हेयर यू आर वेकिंग अप. ठीक है, so in this mechanism the entry and exit in the critical section are performed on the basis of the value of the counting semaphore. The value of the counting semaphore at any point of time indicates the maximum number of processes that can enter the critical section at the same time. A process which wants to enter in the critical section first decrease the semaphore value by 1, then it checks whether it is negative or not. If it gets negative, then it is being pushed in the blocked states. Otherwise, it gets into the critical section. तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं. पहले वो वैल्यू को चेक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 1 से डिक्रीज करने के बाद वो चेक कर रहा है कहां पर, ब्लॉक्ड स्टेट में. अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दे रहा है, और अदरवाइज ब्लॉक्ड स्टेट में नहीं डालेगा तो कहां डालेगा, क्रिटिकल सेक्शन में डाल दे रहा है कि जाओ यू कैन एग्जीक्यूट योर क्रिटिकल सेक्शन. नाउ व्हेन अ प्रोसेस एग्जिट्स फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है सेमाफोर को बाय 1, और फिर से वो चेक कर रहा है कि क्या उसका वैल्यू नेगेटिव है या 0 है. अगर नेगेटिव है दैट मीन्स एटलीस्ट वन प्रोसेस इज वेटिंग इन द ब्लॉक स्टेट. ब्लॉक स्टेट में कम से कम एक प्रोसेस तो डेफिनेटली वेट कर ही रहा है. हेंस टू इंश्योर द बाउंडेड वेटिंग, फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द ब्लॉक स्टेट उसको वो क्या कर देगा, वेकअप कर देगा. और वेकअप कर दिया, कंडीशन चेक हो गई तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है क्लास, जो एल लिस्ट आपने डाली है जिसमें ब्लॉक प्रोसेसेस जा रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है, जो न्यू प्रोसेसेस आ रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है. ठीक है, सो द प्रोसेसेस इन the block list will be waked in the order in which they are slipped. Now this is important, जिस order में वो सोए हैं उसी order में उनको उठाया जाता है. If the value of the counting semaphore is negative, then it states that the number of processes is in the blocked state, while if the value is positive, then it states that the number is available in the critical section. बहुत easy. Negative का मतलब है आप blocked state में चले गए, positive का मतलब है आप critical section में चले गए. तो definitely ये problem आपको solve करने में help कर रहा है. ठीक है, so what you are doing, you are weighting, you are decrementing, you are downing it with p, or you are signaling and you are incrementing and you are going up by v. तो ये हमने कुछ p और v ले रखे हैं. एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जो आया हुआ है. हम और काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे in the next lecture. So here we have a counting semaphore which was initialized to 12. So s was 12. And then 10p यानी 10 times waiting have been called and then 4 times signal have been called. So 10 time v मतलब आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा. 12 minus 10 that is nothing but 2 as you can see, and then 4 times signaling has been given, that means 2 plus 4 that is nothing but 6 is the right answer. So now the final value of the counting semaphore would be 6. In this way we can give the chances to the processes and all the situations are being met, and in this way, in this scenario, you can say semaphores entered into the picture. Now the next concept and the last concept for the day today was just to make you people understand the concepts. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं. एक तो यही आपने देख लिया, इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है, और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ा दूंगी मैं क्वेश्चंस में, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ.
सो लेट अस जस्ट फर्स्ट कंप्लीट द लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं बात करूंगी जो मुझे बोलना है। पहले मैं इसको लास्ट टॉपिक को ओवर कर देती हूँ। बाइनरी सिमाफर और म्यूटेक्स। नाउ इन द काउंटिंग सिमाफर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाज नॉट प्रोवाइडेड। व्हाई? बिकॉज we had a set of processes which required to execute in the critical section simultaneously. तो definitely mutual exclusion आपका इसमें काउंटिंग सिमाफर में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमें एक वक्त से ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेसेस आना चाह रहे हैं उनको एड्रेस करना है। However, बाइनरी सिमाफर और म्यूटेक्स प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आपको म्यूटेक्स से ये भी मिल जाता है। Here, instead of having more than one slots available in the critical section, we can have only at most one process in the critical section. एक slot की जगह यहाँ काम हो जाएगा एक process से। Now the semaphore can have only two values, 0 और 1. यहाँ पर semaphore की दो ही वैल्यू हो सकती है। बाइनरी म्यूटेक्स का मतलब है क्लास, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ पर आपका आंसर या तो 0 या 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक बार आप इसकी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। Here we have the binary semaphore. Here we have taken the enumerated data type which can only have two values, 0 और 1. Enumerated का मतलब है reserved values जिसके अंदर 0 और 1 ही आ सकता है। Here we have a Q type L, एक L है। इस L के अंदर क्या है क्लास? All PCBs corresponding to the process blocked while processing down operation unsuccessfully. जो भी ब्लॉक होते जा रहे थे उन सबको हमने L में डाला है। कहाँ डाला है? L में। अब डाउन ऑफ बाइनरी सिमाफर में क्या होता है? इफ एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल टू होता है, दैट मीन्स इफ अ स्लॉट इज अवेलेबल इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो प्रोसेस डेफिनेटली कहाँ एंटर कर जाएगा? क्यू में एंटर कर जाएगा। नाउ इफ इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू को चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एस डॉट वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं 0 से। क्यों 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं? ताकि कोई भी और प्रोसेस उसको 1 की तरह रीड ना करे और अकॉर्डिंगली द पर्सन, जो भी प्रोसेस है, इट कैन एक्ट। एल्स में चलते हैं। यू आर गोइंग टू पुट द प्रोसेस पीसीबी इन एसएल, यानी अगर कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप उस प्रोसेस को क्यू की जगह पे कहाँ डाल देंगे? ब्लॉक्ड क्यू में डाल देंगे। और ब्लॉक क्यू का मतलब है आप यहाँ पर स्लीप सिस्टम कॉल भी कॉल करेंगे। ठीक है, फिर अब आता है, अब में क्या हो रहा है? इफ एस डॉट एल इज एम्प्टी, यानी जो भी मेरे प्रोसेसेस आ रहे थे अगर वो एम्प्टी हो जा रहे हैं, दैट मीन्स नाउ नो प्रोसेस हैव ट्राइड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो आप यहाँ पर जैसे एस डॉट वैल्यू 0 कर दे रहे थे, यहाँ पर क्या कर देंगे? एस डॉट वैल्यू 1। अदरवाइज आप क्या करते जाएंगे? वेकअप करते जाएंगे। कहाँ से? ब्लॉक्ड क्यू से। ठीक है, तो सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन जो आपने ऊपर पढ़ा, लेकिन इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन में आपने देखा वैल्यूज या तो 0 पॉसिबल है या तो 1 पॉसिबल है। ठीक है, अगर डाउन जा रहे हो और अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब उसको क्यू में, क्रिटिकल सेक्शन के क्यू में डाल सकते हो। मोमेंट इट इज गोइंग टू गेट इट्स टर्न, तो उसको वो वैल्यू मिलता जाएगा। एंड लेटर ऑन व्हाइल यू आर एग्जिटिंग, आप क्या कर रहे हो? आप इनिशियलाइज भी कर दे रहे हो एस डॉट वैल्यू क्या? 0, ताकि बाकी कोई प्रोसेस आना चाहे तो वो एंटर कर सके। वो तो तभी एंटर करेंगे ना, आप तो ये शुरू से ही मैं बता रही हूँ, जब से क्लास स्टार्ट हुई है। अगर वैल्यू जो है लॉक की, तो यू कैन थिंक इट एज अ लॉक, अगर लॉक की वैल्यू 0 होगा तभी तो वो एंटर करेगा ना, तो वो एंटर करेगा। तो इसलिए हमें एग्जिट करते हुए ये वैल्यू को दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा 0 पर। अब क्या हो रहा है? और अगर मान लीजिए कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो उसको आप ब्लॉक्ड क्यू में डालते जाइए, स्लीप करवाते जाइए। अब स्लीप करवाने का ये मतलब नहीं है उसको परमानेंटली स्लीप करवाना है, वी हैव टू वेक इट अप। तो जब हम अप में गए और हमने देखा कि हमारे ब्लॉक प्रोसेसेस एम्प्टी है, तो हमने एस डॉट वैल्यू 1 करा, और जो जिस तरह से आ रहे हैं, मान लीजिए क्यू है, उस क्यू में मान लीजिए अगर 1 प्रोसेस आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर दोबारा से नेक्स्ट टाइम 1 को ही आप कॉल करिए, फिर 2 को ही कॉल करिए, 3 को ही कॉल करिए, 4 को ही कॉल करिए। द वे इट हैज एंटर्ड would be the way it would be addressed, right? So in this way, now I have not included the numericals would be there. अब मैं क्या करूंगी, एक बार मैं आपको इसका जस्ट देना बहुत जरूरी है। This is a very important lecture because it is quite confusing, complicated. इसमें आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान से अगर आप नहीं सुनेंगे, you might get confused. तो मैं एक brief क्विक रिवीजन दे रही हूँ। मैंने आपको बताया क्लास, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, जहां पर प्रोसेसेस कोऑपरेट्स करते हैं। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है रेस कंडीशन एंटर कर सकते हैं। वो रेस कंडीशन हम चाहते हैं कि कभी भी ना हो, उसके लिए हम अलाउ करना चाहते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आए। क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है मैंने आपको वो बताया। फिर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, आप कुछ भी मैकेनिज्म बनाएंगे उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, बाउंडेड वेटिंग हो ना हो इट्स ओके, आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी
या फिर यू कैन टॉक इट एज अ पोर्टेबिलिटी, हो या ना, आप उसको देख सकते हैं। हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा, लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म, उसके अंदर हमने बातें करी 0 1 0 1 होकर किस तरीके से सिंक्रोनाइज होगा, और हमने क्या देखा कि इस प्रोसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेटिंग है या पोर्टेबिलिटी, क्या क्या चीजें इसमें है और क्या क्या चीजें इसमें नहीं है। तो हमने देखा इस तरह के प्रोसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं है तो हमें और कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा। फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म हम गए, दैट वाज माय टीएसएल मैकेनिज्म। टीएसएल मैकेनिज्म में हमने देखा कि हमने पहले ये लॉक का वैल्यू 1 कर दिया, फिर हमने क्या चेक करा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें प्रोवाइडेड था, फिर प्रोग्रेस भी इसके अंदर प्रोवाइडेड था, फिर बाउंडेड वेटिंग इसमें नहीं था, पोर्टेबिलिटी नहीं था। देन केम प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी इन्वर्जन में एक और फैक्टर आ जाता है, प्रायोरिटी। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जा रहा था स्पिन लॉक का, तो हमने एक वेरिएबल लिया था टर्न वेरिएबल, विच वाज हेल्पिंग अस आउट फॉर 2 प्रोसेसेस, 2 से ज्यादा के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अगर 2 प्रोसेसेस हैं पीआई, तो पीआई अगर अपना टर्न दे देता है तो उसको मिलेगा, पीजे बोल रहा है तो पीजे को मिलेगा। इसमें हमने क्या देखा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, बाउंडेड वेटिंग है, पोर्टेबिलिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्लास आपके एग्जामिनेशन में, कौन से मैकेनिज्म में प्रोग्रेस अलाउड नहीं है, कौन से मैकेनिज्म में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है पॉसिबल, आपको ये तो ध्यान होना ही चाहिए। फिर इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म में हमने टर्न के साथ एक और वेरिएबल बना दिया था, एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसका नाम था इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स चेक कर रहे थे। इसका हमने क्या देखा, सॉल्यूशन क्लास, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग नहीं है, पोर्टेबिलिटी है। सो डेफिनेटली वी कैन टॉक ऑफ दिस थिंग। फिर पैटरसन एक ऐसा सॉल्यूशन क्लास हमने देखा जिसके अंदर ऑब्वियसली इट इज वर्किंग फॉर 2 प्रोसेसेस, लेकिन इसके अंदर हमें सारे सॉल्यूशंस मिल गए। क्या क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी, राइट। देन अगर हमने देखा इसमें अगर अगर कोई डेडलॉक सिचुएशन में भी आ रहा है, मतलब उसको एक बार चांस नहीं मिल रहा, तो सेकंड टाइम तो उसको डेफिनेटली चांस मिल जा रहा है। सो इट इज गोइंग टू गेट द चांस, जो प्रीवियस मैकेनिज्म्स में नहीं पॉसिबल हो रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा क्लास कि पैटरसन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेटिंग, पोर्टेबिलिटी है। फिर हमने क्या बोला, जितने भी हमने मैकेनिज्म्स अभी पढ़े उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बिजी वेटिंग था, वो किसी ना किसी चीज में वेट कर रहा था। अगर आपको विदाउट बिजी वेटिंग में जाना है तो हमारे पास एक और सिचुएशन आ गई, विदाउट बिजी वेटिंग और विदाउट प्रायोरिटी इन्वर्जन, तो उसको प्रॉब्लम का नाम है स्लीप एंड वेक। मतलब आप वेट मत करिए, आप सो जाइए, यू स्लीप। आप वेट मत करिए, आप उठ जाइए, यू वेक अप। तो वहां पर हमें 2 सिस्टम कॉल्स कॉल करने पड़ रहे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर। तो वहां पर हमें एक बफर मेंटेन करना पड़ रहा था, वो भी हमने देखा क्लास। और बफर मेंटेन करने के बाद हर एक एक इंसर्शन के बाद अगर आपका बफर फुल हो जा रहा है तो प्रोड्यूसर जो है वो सो जाता है, कंज्यूमर के पास कुछ कंज्यूम करने के लिए तो वो सो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक डेडलॉक का सिचुएशन आ रहा था जो बहुत रिस्की सिचुएशन था, तो हमने यहाँ पर एक फ्लैग बिट्स को यूज किया। फ्लैग बिट्स को यूज किया तो इससे 2, अगर मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वेक कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज देयर वाज अ सिंगल पेयर। लेकिन अगर n पेयर ऑफ प्रोड्यूसर और n पेयर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं क्लास, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सेमाफर्स। सेमाफर के अंदर क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम सारे के सारे वैल्यूज जो है वेकअप कॉल्स के स्टोर करते हैं। इसमें क्लास हमने फर्दर पढ़ा, एक होता है काउंटिंग वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन बाइनरी जो सेमाफर है इसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, 0 एंड 1। काउंटिंग सेमाफर के अंदर क्लास हमने क्या पढ़ा कि अगर जो वैल्यू है सेमाफर की हम वो चेक करते हैं, वो तभी क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है इंट वैल्यू अगर उसका टर्न भी इक्वल है, इंटरेस्टेड भी है, सारी सिचुएशंस इक्वल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सेमाफर की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे ही एक नया प्रोसेस कहाँ गया, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करा। लेकिन अगर जैसे ही वो नेगेटिव हुआ हम उसको ब्लॉक स्टेट में डालकर स्लीप करवा दे रहे थे। ठीक है, अप स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हम वैल्यू को अप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और एग्जिट करते हुए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू को भी चेंज कर दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर वैल्यू इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 तो हम क्या कर दे रहे हैं, वेकअप कर दे रहे हैं उसको। यानी जो भी ब्लॉक्ड क्यू में जो भी प्रोसेसेस गए हैं उनको एक एक कर हम कॉल भी कर रहे हैं, एंड सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ओवर हियर। बट वन प्रॉब्लम रिमेन्स ओवर देयर, दैट इज कि यहाँ पर आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेस आ रहे हैं, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देता है बाइनरी सेमाफर।
यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको डेफिनेटली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 या 1 ही होगा। आपको पता है आप 0 होगा तभी आप एंटर कर पाओगे, वैल्यू को फिर सेट कर दोगे 1 और जाते हुए फिर सेट कर दोगे 0। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको कहानी की तरह चाहा और समझाने की कोशिश करा। तो आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, पूरा का पूरा मैंने आपको करवा दिया है। अब क्लास नेक्स्ट एक भारी भरकम टॉपिक में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। वी विल बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, मेनी क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। जितने टॉपिक्स हम लोग ने अब कवर कर लिए। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए क्लास, एक मिनट, हम लोग ने क्या क्या कर लिए, प्रोसेसेस क्या होते हैं, देन सबसे पहले तो मुझे आपको बताना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं और कौन से टाइप को कहाँ यूज करते हो, इन विच सिनेरियो डू यू यूज दैट पर्टिकुलर टाइप। इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। थ्रेड्स क्या हैं, फिर थ्रेड्स को हैंडल कैसे करना है, हैंडलिंग ये बताया था आपको। देन सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने लेक्चर 1 में कवर किया है उसको, फिर हम लोगों ने एक लेक्चर 2 भी डाला था जिसके अंदर हम लोग ने आपको बताया है, देयर वी हैव टोल्ड यू अबाउट द शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का बर्थ कहाँ से क्या हुआ वो आपको लेक्चर 1 से मिलेगा। देन शेड्यूलिंग वाला ही एक लेक्चर था, दैट वाज लेक्चर 2। देन द फोर्थ थिंग दैट वी हैव डन ओवर हियर इज सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में हमने बहुत बातें पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, तो उसका हो गया आपका लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। तो इस पूरे को इंक्लूड करके क्लास हमारा क्या बनेगा, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगी, ऐसा कोई बच्चा जिसने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे हैं वो फर्दर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डेडलॉक मैकेनिज्म। डेडलॉक के बाद आ जाएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के बाद आ जाएगा आपका वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी, उसके बाद आई कैन वी पीपल कैन स्टॉप इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द syllabus is vast, so you have to match our speed, you have to go with us, right? So complete the previous lectures, complete today's lectures also. In case if you are having any query, any question anywhere, do let me know in the comment section, we will be solving it. Though your problems will be solved in the next lecture, because I'll be doing a lot many questions for you people. And later on I have told you the roadmap, how we are going to go. Then we have to go to the deadlock, memory management, virtual management, and then comes security, right? So that is all for today class. Thank you. If you have really understood, if you have really liked the lectures, please do like, share and comment, and please study. That is important. Please study. That is my only purpose. Please study. Please understand the topics. Please study hard, crack the examination. If we have so many candidates, if there are, let's say, if there are 600 or 700 vacancies, I will keep repeating the same thing. We want 600, 700 people from our channel only. I want that. We want that. Sir wants it. Right? So for that, you have to help us. You would be happy because you are going to get a lucrative job. We are happy because our success is there in your success. So for that, you have to work hard. Right? I have also given you the gist. I have given you the whole picture, the whole scenario of how the process synchronization works. Now you have to go with the basics. आपको पहले basics करने हैं. Basics के बाद there is scheduling, very important, and then comes synchronization. Now you know from every topic you are going to get 1 or 2 questions, sure questions. So start studying. That is all. Thank you, and I will be meeting you very soon with the next lecture that would be on the question answers, right? Thank you. All the best. Keep learning, keep sharing, and keep learning. Thank you.